Okay, everybody. So today we will be discussing the genetic code. Alright. So the genetic code refers to the set of 64 codes or codons as we call them, which translate or which mean a particular amino acid. We have 20 protein amino acids. There are 64 codes which correspond to these 20 amino acids, right? So let's look at the discovery of them. First, it was the triplet code was proposed by George Gamow, but the discovery happened something like this. Crick and his group of scientists figured that if we take the DNA of T4 bacteriophage and in it we make a change, so we either add one base pair to the DNA or two, or we delete one or two, then the whole DNA stops functioning, right? The whole process of translation stops. But if we do the same thing with 3, there is minimal disturbance. Yes, the protein that is getting formed may be malformed, but it will still work. But if you remove 1 or 2, it completely stops functioning. So from there, they started to think that maybe whatever is happening, whatever is being read as a code, may be in the multiple of 3s. Now Nirenberg and Matthey, what they thought was that there are 4 nitrogenous bases. So अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो इन नाइट्रोजनस बेसिस से बने हैं, तो 4 ही चीजों से बन सकती है ना? तो अगर इफ 1 नाइट्रोजनस बेस, A stands for 1 अमाइनो एसिड, U stands for 1 अमाइनो एसिड, ऐसा करेंगे तो हमको सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड मिलेगा, है ना? विच इज नॉट इनफ, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है. तो अगर कोड सिंगलेट है तो 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. हमको एटलीस्ट 20 एंड अबव कॉम्बिनेशंस चाहिए. तो डबलेट भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें भी 16 कॉम्बिनेशंस है. ट्रिपलेट में 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशंस, विच इज वे मोर बट प्रोबेबल, क्योंकि उससे कम तो हो ही नहीं सकता. करेक्ट? So now to prove that, what they did was they took 4. They are known as homopolymers. Homopolymer word का मतलब है कि सेम बेस के पॉलीमर्स. करेक्ट? सो जब उन्होंने होमोपॉलीमर्स, सो पॉलीयूरिडिलिक, पॉलीएडेनाइलिक, पॉलीगुआनाइलिक, पॉलीसाइटिडाइलिक एसिड्स बनाया, उन्होंने देखा कि उससे सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं बन रही है, उसके पॉली चेन्स बन रहे हैं. सो पॉलीफिनाइलएलानिन, पॉलीलाइसिन, पॉलीप्रोलिन. पॉली जी डिड नॉट वर्क, लेटर इट वाज फाउंड टू कोड फॉर ग्लाइसिन. ठीक है? सो फ्रॉम दिस दे नेगेटेड द फैक्ट कि 4 है. तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 पॉसिबल है, 3 से ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन 4 भी नहीं है क्योंकि फिर नॉर्मल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहे, पॉली चेन्स सिंथेसाइज हो रहे. सो फ्रॉम देयर दे डिसाइडेड ओके इट मस्ट बी ट्रिपलेट कोड. But the most convincing clue or the convincing evidence was given by Hargovind Khurana and his group. उन्होंने एक कोपॉलीमर सिंथेसाइज किया. कोपॉलीमर का मतलब है 2 या उससे ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस को एक के बाद एक रिपीट में लगाना. करेक्ट? तो उन्होंने एक UG का कोपॉलीमर बनाया. राइट? नाउ 2 things were possible. 1, अगर ये ट्रिपलेट होगा तो this is the code that will get read. Right? So the code that will get read would be UGU, GUG, UGU, GUG, UGU, GUG. And if it is quadruplet, 4 है, 2 है तो UG, 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 UG ऐसा रीड होगा, है ना? और अगर 2 और 4 के मल्टीपल में इट विल ऑलवेज बी होमो. सो अगर मैं डबलेट कंसिडर करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमको पता है, देन UG. अगर ट्रिपलेट कंसिडर करूं तो UGU, GUG. एंड अगर मैं क्वाड्रुपलेट कंसिडर करूं देन UG के होमो क्लस्टर्स बनेंगे. करेक्ट?
देन व्हेन दे सिंथेसाइज्ड इट, उन्होंने देखा कि उनको ऑल्टरनेट 2 अमीनो एसिड का लंबा चेन मिल रहा है, सिस वाल सिस वाल सिस वाल, विच इज ओनली पॉसिबल इन दिस केस, है ना. इन दिस केस यू विल हैव दीज ऑल्टरनेटिंग रिपीट्स ऑफ द सेम कोड, राइट. एंड दिस beyond a doubt proved that okay, then this is a triplet code. Now how do we remember or how do we write them? So we write them something like this. So we make a UCAG column on two sides, and for each U, C, A and G column we make a UCAG column, okay, and then we read left to right. So U U U U U C U U A U U G C U U C U C C U A C U G, like that. A U U A U C A U A U G G U U G U C G U A G U G. I hope you get the gist of it, right? So then we fill it up like that. When we fill it up like that, we get the whole 64 set of codons. Out of these, this one methionine is the start codon. Okay, AUG, okay, and these two UA, UAG and here UGA, they are the stop codon. तो मतलब टोटल 64 है ना. 64 में से 3 निकाल दो, देन हो गए 61, और इससे भी एक निकाल दो तो 60, राइट. इफ यू वुड लुक एट दिस होल टेबल, यू विल सी के सिर्फ 2 मिथियोनिन और tryptophan, they are the only 2 amino acids who have single codons for them, है ना. methionine by AUG, tryptophan by UGG. other than that सारे amino acids के लिए एक से ज्यादा codons है. ल्यूसीन के पास सबसे ज्यादा है, उसके पास 6 टाइप्स के codons है जो सारे ल्यूसीन के लिए ही कोड करती है, राइट. so now if you look at the characteristics of your genetic code, the genetic code is obviously triplet. 3 बेसिस से बनेंगे, कॉमा लेस. जब हम उसको लिखेंगे हम बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, है ना. जब हम उसको रीड करेंगे देयर इज नो कॉमा और स्पेस. 3 will be read, then 3 will be read, then 3 will be read. So it's comma less. It's non-overlapping, meaning जब हम इसको रीड करेंगे तब हम UGU को डिस्टिंक्ट रीड करेंगे, फिर GUG को. ऐसा नहीं होगा कि UGU रीड किया फिर GUG यहाँ पे रीड किया फिर UGU यहाँ पे रीड किया. फॉर दिस केस तो फिर भी सिमिलर रीडिंग्स आएंगे बिकॉज ये कोपॉलिमर है ना. बट अगर मैं UGCU GGCCUGCUG AA, यहाँ पे भी A घुसा दो, रैंडम कोई भी अगर सीक्वेंस ले लूँ तो पहले UGC रीड हो गया, फिर GCA रीड हुआ, फिर CAU रीड हुआ, फिर AU G रीड हुआ, राइट. फिर यहाँ से UG G रीड हुआ, ऐसे होगा, है ना. सो नाउ देन माई अमाइनो एसिड विल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ C. लेट्स डू इट. अगर नॉर्मली मैं रीड करूँ विदाउट ओवरलैप, जैसे रीड करना चाहिए, तो UGC AUG GCC UGC UGA, करेक्ट. तो क्या हुआ, UGC के लिए क्या आएगा, UGC, so that's cysteine, right. AUG के लिए क्या आएगा, AUG methionine, ठीक है. GCC के लिए क्या आएगा, GCC alanine. UGC के लिए क्या आएगा, UGC again a cysteine, and UGA is a stop codon, तो उसके लिए कुछ नहीं लगेगा. So this is my polypeptide chain, cysteine methionine alanine cysteine, ठीक है. अब अगर मैं विथ ओवरलैप इसको रीड करूं, सो सबसे पहले रीड होगा UGC, ठीक है. तो UGC के लिए क्या लग जाएगा, UGC के लिए लग जाएगा cysteine. फिर रीड होगा GCA, राइट. सो GCA के लिए ऐड होगा एलेनिन. फिर रीड होगा CAU, ये क्लस्टर, राइट. सो CAU के लिए हो जाएगा हिस्टिडीन. फिर होगा AUG विच इज मिथ्योनिन. फिर होगा UGG, right. So UGG then becomes what, UGG becomes tryptophan,
right? Then becomes GGC. What is GGC? So GGC is glycine. So basically क्या हो रहा है, जहाँ पे हमको सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए थे नॉन ओवरलैपिंग कोड में, यहाँ पे ये चेन भी लंबा बन रहा है और प्रोटीन भी अलग बन रही है, करेक्ट? सो नेवर इन योर सिस्टम विल दिस बी डन. ये नहीं होता कभी भी. नॉन ओवरलैपिंग रीडिंग हम नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग रीडिंग हम नहीं करेंगे, हमेशा नॉन ओवरलैपिंग डिस्टिंक्ट हर एक कोड को पकड़ के रीड करेंगे. नाउ व्हाई डिड आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन दिस? क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर एक कोड को हम नॉन ओवरलैपिंग वे में रीड करेंगे वर्सेस ओवरलैपिंग वे में रीड करेंगे तो हमारे अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा. सो इट विल चेंज, इट विल बी लॉन्गर, right? And you will have a different protein. Sometimes they also ask you to do this change, for which you will have to remember this. Okay? Now, one more thing that you have to understand from here is that 1, 2, so let's see how many, 1, 2, 3, 4. है ना? 4 codons. You have 4 amino acids, right? How many bases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Sorry, 13, 14, 15. So 15 base pairs थे मेरे इस एग्जाम्पल में. तो आपको कोई भी लंबा चेन दे दे, आप नंबर ऑफ बेस पेयर्स काउंट करोगे, उससे 3 माइनस करोगे क्योंकि लास्ट 3 ऑब्वियसली स्टॉप कोडॉन है अगर आपके बेस में स्टॉप कोडॉन दिया हुआ है, करेक्ट? सो देन इट बिकम्स 12. यू विल डिवाइड इट बाय 3, यू विल गेट अ, so you will divide it by 3, you will get 4. So you have 4 amino acids. So if a question comes, 2 ways में आ सकते हैं क्वेश्चन. एक, आपको चेन बता दिया, करेक्ट, और उसमें आप देख पा रहे हो लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन है, तो आप स्टॉप कोडॉन को छोड़ के नंबर ऑफ बेसिस काउंट करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, राइट? और यू कैन बी सेड दैट अ फुल्ली फॉर्म्ड फंक्शनल mRNA has this many number of bases. How many amino acids will be translated from it? You will -3 because for the stop codon fully formed बोला है तो stop codon obviously होगा, and then you will divide it by 3. Okay, it will always be equally divisible by 3 because it has to be, otherwise it's not a functional segment of gene. Okay, and then next function comes universal. अब universal का मतलब क्या है? Universal का मतलब है कि ये जो genetic code है, this is universal for all animals, virus, plants, doesn't matter. Anything living on earth which is doing translation is following the genetic code for formation of amino acids. Okay, moving on to punctuation codons. So as I told you, there is 1 start codon and 3 stop codons. They are also known as nonsense codons. Why nonsense? Because इनसे कोई sensible amino acid का translation नहीं होता है. तो nonsense codons 3. UAA is called ochre, UAG is called amber, UGA is called opal. Okay. Now coming to the last part, non-ambiguous degenerate code. इसका मतलब क्या है? Ambiguous होने का मतलब है confusing, है ना? To mean 2 things like that. So non-ambiguous मतलब अगर AUU आइसोल्यूसिन के लिए कोड करता है, वो हमेशा आइसोल्यूसिन के लिए ही कोड करेगा, वो कभी भी ल्यूसिन या सेरीन या प्रोलिन के लिए कोड नहीं कर सकता. Which means basically if I were to write it down, codons code for specific amino acids. So or one amino acid, one codon has one specific amino acid. But then what does degenerate or degeneracy mean? Degeneracy means the corollary of it, which means that one amino acid can have multiple codons. तो एक कोडॉन का अमाइनो एसिड हमेशा फिक्स्ड है, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन्स हो सकते हैं. वन अमाइनो एसिड कैन हैव मल्टीपल कोडॉन्स. ओके, सो नाउ व्हाई दिस, व्हाई डीजेनरेसी? अगर आप इसको नोटिस करोगे अच्छे से, यू विल सी दैट हमेशा फॉर एनी गिवन अमाइनो एसिड पहले के 2 जो है वो सेम है,
है ना? चेंज हमेशा इसमें हो रहा है, द लास्ट वन, right? So if I consider there to be 3 positions, right? The first 2 positions are fixed positions, whereas the last position is known as the wobble position. वॉबल पोजिशन का मतलब है कि यहाँ पे जैसे यू के लिए पकड़, ठीक है, या फिर यू इज अ बैड एग्जाम्पल, आई टेक ए यू, बट इट इज मोर और इज ट्रू फॉर ऑल, ओके? ए यू के लिए पकड़, पीछे कुछ भी बैठ जाए, यू हो, सी हो या ए हो, इट विल ऑलवेज मीन आइसोल्यूसिन, इट मीन्स द सेम थिंग, करेक्ट? इसलिए पीछे में अगर चेंज हो भी रहा है, एक पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, जहां पे थर्ड पोजिशन पे बेस इज चेंजिंग बिटवीन यू, सी, ए और जी, इन मोस्ट केसेस 1 2 3 4 5, राइट, 6 7, राइट, फॉर 7 केसेस एंड ऑल्सो फॉर मोस्ट डबल तो है ही, क्या होगा? अमाइनो एसिड का चेंज नहीं होगा। इससे 2 फायदे हैं। एक, जब हम टीआरएनए बनाते हैं, योर बॉडी कैन मेक ऑल 64 ऑफ देम, but it is extremely energy efficient, energy utilizing, correct? तो उसलिए अगर हमारे बॉडी में वैलिन के लिए एक ही टीआरएनए बन जाए और वही टीआरएनए वॉबल पोजीशन को छोड़ के बाकी दोनों के साथ मैचिंग कर ले कि अगर जीयू है तो वो वैलिन ही होगा, पीछे थर्ड पे क्या है डजंट मैटर, राइट? देन फॉर वैलिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग 4 यू कैन मेक वन टीआरएनए, सो 3 टीआरएनए बनाने की एनर्जी आप सेव कर रहे हो, सो इट इज एनर्जी एफिशिएंट, दिस प्रोसेस is energy efficient for your system. Therefore, instead of having 64 tRNAs always present in your body, you have something around 50, 55, right? Lesser than that. And also, this ensures lesser rates of mutation because when the DNA is getting copied or when transcription is happening, एक आध पॉइंट म्यूटेशन होना काफी नेचुरल है क्योंकि इतने बड़े बड़े जीन्स को आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज रीड करके उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अप्लाई करते हैं. सो देयरफॉर इवन इफ अ पॉइंट म्यूटेशन हैपेंस एट द वॉबल पोजीशन, इन मोस्ट केसेस कोई मेजर म्यूटेशन नहीं होगा, कोई मेजर चेंज इन द प्रोटीन नहीं होगा जिसकी वजह से डिजीजेस नहीं होंगे. सो डीजेनरेसी के ये दो वॉबल हाइपोथेसिस मीन्स that the last position of your triplet codon is a wobble position which if changed does not always lead to a change in the amino acid being coded, and the benefit is twofold. One, it preserves or saves energy in the process of translation, and two, it prevents unwanted mutations that could have happened due to point mutations done during translation or replication of DNA. Okay, so I hope this part about the genetic code is clear to you. You will have to remember this. You will be needing this for a few questions. I know weightage wise NEET के लिए शायद 4 marks का ही एक question आएगा. But if you remember this, it will help you later in life as well. As well as ये वाला section is very, very important. So go through it, see the videos and let me know if you have any doubts. Thank you very much.